Okay. See, this is next chapter, marginal costing 2. Now, we had done marginal costing 1, that was simple problems. That means five or six formula based chapter was there, and it was related to PV ratio, contribution, and how to calculate required sales if desired profit is given, or and vice versa, margin of safety. So, with the help of those formulas, now we will make a decision. Now we will make decision which of the product, which of the company, which is better investment. Okay. Now with the help of those formulas of marginal costing, we need to make decisions. Therefore, this chapter is based on decision making problems. Okay, marginal costing techniques helps the management in taking strategic decisions such as we need to whether we need to diversify the products, fix the selling price. Price in depression means during the depression in economy, during inflation, during deflation, during recession period, what should be the pricing strategy. Accepting an additional orders, that means during season time, how many additional orders can we accept, that decision can be taken through marginal costing. Pricing in case of exports, exploring additional market, that means how far I can reach to different customers and different markets, so it is related to exploring additional market. Selection of profitable product mix, how many products can I make at one time so as to satisfy my customers and to increase my profits. Okay. Problems of limiting key factors means I have limited resources, human resources, financial resources. Therefore, all these factors will help me solve the problems of limited resources that I have. Alternative methods of manufacturing means there is not only one method to manufacture a product. That can be the product can be developed or manufactured into many different ways. So you need to take a decision which method will be your cost effective method, and that can be taken, that can be calculated with the help of marginal costing as well. We will understand through practical questions. Make or buy decisions. Now you know what is make, what is buy. Make means to manufacture, and buy means not to manufacture but to buy ready-made products and sell it in the market. So what is beneficial for your company? Whether to manufacture a product and then sell it in the outside market, or directly buying a ready-made product and then selling it into the market will be beneficial. Like what kind of decision will be beneficial for you? Okay. Working extra shifts, how many shifts you will be able to work for, like extra night shift or only day shift is sufficient for you. Okay. Level of activity planning, how activities are planned, you need to decide level for that. Okay. Performance level, you need to check the performance level, you need to check the skills level of the employees. So there are many things that you need Mhm. to check for activity planning. Any activity, suppose there is a marketing activity, so you need to check how many persons are required, what are the skills that a person should possess to have a marketing skills, marketing capability, marketing ideas. What are the skills that a man should possess for having marketing ideas, right? So you need to decide levels of activity planning. Effect of change in the selling price, suppose now my selling price is 10 rupees, but in future I'm going to change, I'm planning to change it from 10 to rupees 15. So will my customers be happy? Will they buy my product? Will they feel that if the price is increased, the quality is maintained or quality has been increased? Will they feel that with my product? Will they stay with me forever if I increase my prices? You need to check the effects. Mute Rajan. Okay, so I will have to check the effects. Closing down, like if I want to close down the business, so what decision do I have to take? Whether to close down the business, whether to outsource, means if I'm not able to take up a responsibility, then should I appoint an expert and give them the responsibility of handling particular task?
that is known as outsourcing. Or suspending activity, बंद कर दो, suspending means बंद, activity should be closed down. Full business should not be closed down, but then you can close a particular activity in which you are not able to focus your attention on, so that can be closed down. So you need to take decision, no, whether to suspend a particular activity or closing down the business will be profitable. You need to take decisions. So to take the decisions, you need to apply the costing method, which is known as marginal costing. Alternative courses of action. What can be done if employee turnover increases? So what are alternative courses? What are alternative choices on this particular action? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कंपनी में, प्रोडक्शन स्लो डाउन हो गया, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, तो क्या ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस है मेरे पास? सो आई नीड टू सी विद the help of marginal costing. Selection of optimum volume and selling price. Volume means it is related to the number of units that you produce by using the available resources at its best possible capacity. That is known as optimum volume. मीन्स जितने आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप बेस्ट वे में यूटिलाइज करके विदाउट वेस्टेज आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो और उसकी कितनी सेलिंग प्राइस मार्केट में टारगेट कर सकते हो. सो दैट इज नोन एज सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम वॉल्यूम एंड सेलिंग प्राइस. So these things are given in detail. I told you in detail only every point, but if you want to read a few more about each one of them, you can have a just you can just go through. Okay, let me just, yeah, okay, now see, just a minute, let me just have a practical question at the beginning. Yeah, now look at this question, third one. We are starting with the practical questions, huh? Marginal costing, the concept is same, all the formulas will also be same. How to calculate contribution, how to calculate break-even point, everything will be same here. But what you need to do extra is you need to take decision whether which of them will be better investment for me. Me means company. Okay. Now see, look at this third question. Fees. Examination scenario बताया हुआ है यहाँ पे. थोड़ा spelling mistake है एग्जामिनेशन का. एनीवेज छोड़ो, जाने दो. फीस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 75 पर स्टूडेंट. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? ओके. अभी देखो, फीस कितनी है आपकी? 75 पर स्टूडेंट है, ठीक है. और 2 ईयर्स दिए हुए हैं, 2014 एंड 15. अब क्या बोल रहा है वो? फीस कितनी है पर ईयर का, पर स्टूडेंट का? 75. तो आपका टोटल फीस कितना हुआ? 3 lakhs एंड 3 lakhs 75. मतलब इसको 3 lakhs को 75 पर स्टूडेंट से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. आई जस्ट होप आपको इतना समझ में आ रहा है. ये तो अंडरस्टूड है ना. आप टोटल फीस को, आपको कितनी टोटल फीस मिली है आपके हाथ में 2014 के साल में? 3 lakhs. तो 3 lakhs को पर स्टूडेंट की फीस से डिवाइड करोगे, मतलब 3 lakhs को 75 पर यूनिट, पर स्टूडेंट मतलब पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे ना. जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे फाइंड करते थे? अमाउंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट, अमाउंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट, तो क्वांटिटी मिलता था. यस और नो? हाँ, बस आपको उतना ही करना है तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. अब देखो क्या दिया हुआ है आगे, एक्सपेंसेस. मतलब समझो आप ऑनोरियम चलाते हो या ऐसे ट्यूशन चलाते हो या स्कूल रन करते हो छोटा सा, तो आप रेंट भरते हो ना उसके लिए. सो दैट रेंट इज गिवन. हाँ, 12,000 दोनों के लिए. एग्जामिनेशन फीस कितनी लेते हो आप? 1,20,000, 1,50,000. प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ऑन क्वेश्चन पेपर्स. क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट करवाते हैं ना बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसका भी तो खर्चा होता है ना. सो दैट इज 80,000 एंड 1 lakh. ऑनोरियम टू सुपरिटेंडेंट्स, मतलब जैसे आपने जो सुपरवाइजर्स आते हैं, जो बाहर से बुलाए जाते हैं बच्चों पे ध्यान रखने के लिए एग्जामिनेशन के टाइम पे, उनको आप ऑनोरियम पे करते हो, मतलब फीस चार्जेस पे करते हो ना उनको.
तो 10,000 आपका खर्चा वहाँ पे हो गया। इन्विजिलेटर्स फीस मतलब सुपरवाइजर्स फीस, जो जो ऑनोरियम पे भी सॉरी सुपरिटेंडेंट्स पे नज़र रखते हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं उनका काम थोड़ा देखना, वेरीफाई करना, और सुपरविजन का काम थोड़ा बहुत देख लेना। सो इन्विजिलेटर्स फीस कितनी है? ₹100 पर डे फॉर 2 days। मतलब पर डे का कितना पे करते हो आप? 100। और टोटल कितने डेज हैं इन्विजिलेटर के? 2 days हैं। तो 100 इंटू 2 दैट इज 200। पर टोटल कितना है? 16,000। तो आपको नंबर ऑफ इन्विजिलेटर्स पता चल जाएगा, 16,000 डिवाइडेड बाय 200। अब नीचे क्या लिखा हुआ है ये देखो, 1 इन्विजिलेटर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 50 स्टूडेंट्स और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, एक एक इन्विजिलेटर चाहिए आपको, मतलब एक सुपरवाइजर चाहिए आपको फॉर एवरी 50 स्टूडेंट्स और पार्ट देयर ऑफ। या तो 50 स्टूडेंट है या तो उसका आधा पार्ट है, पार्ट मतलब थोड़ा उससे कम, या आधा पार्ट। ठीक है, तो भी आपको एक एटलीस्ट एक इन्विजिलेटर तो चाहिए ही चाहिए फॉर एवरी 50 स्टूडेंट्स। तो सपोज 150 स्टूडेंट्स है तो 3 इन्विजिलेटर्स लगेंगे फॉर एवरी 50, तो 150 के लिए 3। समझ में आ रहा है? अदर जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं? 12,000 12,000 दोनों में सेम है। अब यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2014-15 की इंफॉर्मेशन ऊपर दी है, 2016 की इंफॉर्मेशन नीचे। प्लीज ध्यान देना, ये इन 2016 है। कौन सा ईयर है ये? 2016 है, 6 नहीं है। प्लीज नोट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, 16 में क्या बोल रहा है वो? रेंट एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस आर लाइकली टू इंक्रीज बाय ₹3,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो कह रहा है 2016 में रेंट का खर्चा और जनरल एक्सपेंसेस, मतलब फर्स्ट एक्सपेंस एंड लास्ट एक्सपेंस, बाकी बीच के लिए कुछ नहीं बोला तो सेम रहेगा। तो रेंट एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 3,000 एंड ₹8,000 रिस्पेक्टिवली। रेंट का 3,000, जनरल एक्सपेंसेस का 8,000। कौन से ईयर में? 2016 के ईयर में। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस नंबर ऑफ यूनिट्स। हम कैसे नंबर ऑफ यूनिट्स की फॉर्मूला लगाते थे वहां पर सिंपल प्रॉब्लम्स के टाइम पे? याद आया? चैप्टर नंबर 5 मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1, उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते थे ना ब्रेक इवन पॉइंट में। अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कितने स्टूडेंट्स मेरे पास होने चाहिए सो दैट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर द ईयर 2014, 15 एंड 16। And next is number of students required to take up the exams to earn revenue of ₹1,50,000। वेरी सिंपल। देखो आपको है ना, कुछ भी अलग नहीं है, वो 4-5 फॉर्मूलाज जो हम पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं वही है। यू जस्ट नीड टू फोकस विच फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड। आप मुझे बता सकते हो ये बी, जो बी बोला है ना, वो कौन सी फॉर्मूला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू टेक अप द एग्जाम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एग्जाम लेना पड़ेगा सो दैट मेरी जो रेवेन्यू हो, रेवेन्यू मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट, यस, टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ ₹1,50,000। अगर मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट 1,50,000 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड कितने हैं मुझे, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, सॉरी रिक्वायर्ड सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो आपको एक सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी फॉर्मूला है। बस उसने नाम नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। ऐसे नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, पहले उसने जनरल क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ यूनिट्स, रिक्वायर्ड सेल्स कितना, पीवी रेशियो कितना, ऐसा जनरल। अब वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन क्लासेस और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं स्पेसिफिक। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने चेंज कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। जब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेगा तो वो बात करेगा मीटर, कितने मीटर क्लॉथ का प्रोडक्शन होना चाहिए, कितने मीटर क्लॉथ को सेल करना चाहिए सो दैट ब्रेक इवन पॉइंट इतना हो। तो मतलब आपको समझना है क्वेश्चन रीड करके कि क्या कौन सी फॉर्मूला वो अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो अब कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम अपना मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाएंगे जैसे हम हमेशा बनाते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आंसर विल बी प्रॉफिट। और उसके बाद फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे।
बहुत सिंपल है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर आप कॉपी कर लेना सॉल्यूशन, ठीक है। पहले आप सुन लीजिए, अच्छे से पूरा देख लीजिए। अभी देखो, ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें उसने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट एंड रिक्वायर्ड सेल्स, दोनों यूनिट्स में पूछे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो अब पहले हम बनाएंगे कैसे पर्टिकुलर्स, कितने कॉलम्स बनाएंगे पर्टिकुलर्स। 2014 का पूछा है, 2015 का भी पूछा है, 2016 का भी पूछा है। तो तीनों ईयर्स का हमको अलग से सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ यस, ओके। तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, ये कॉलम्स बनाने हैं पहले तो, जो जो उसने पूछे हैं 14, 15, 16 का। अब उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसमें से मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो 2014 में कितने हैं, कैसे पता चलेगा। देखो, फीस आपका सबसे इम्पोर्टेंट, तो फीस में से रेवेन्यू जनरेट होता है ना, सेल्स में से। आपके लिए देखो, अगर एक बिजनेसमैन गुड्स प्रोड्यूस करता है तो गुड्स को सेल करके रेवेन्यू जनरेट होती है ना, उसकी सेलिंग, सेल्स। सेल्स मतलब जो आपने गुड्स को बेचा तो आपको इनकम जनरेट हुई, ठीक है। सेल्स में से माइनस करते हैं ना वेरिएबल कॉस्ट। तो अब एक क्लासेस चलाने वाले, स्कूल चलाने वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू क्या होती है, स्टूडेंट की फीस। समझ आ रहा है आपको। तो वही तो मेरे लिए सेल्स है ना, मैं अपने टीचिंग स्किल्स को आपको बेच रही हूँ और आपसे इनकम जनरेट कर रही हूँ। तो वो जो फीस है ना जो आप मुझे दे रहे हो, दैट इज माय इनकम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? that is my sales. So here you need to think about classes and school and college. तो उनके लिए सबसे important income कौन सी होती है, फीस। तो अब आप देखो, सेल्स 3 lakhs है, सपोज ये सेल्स है, तो ये 3 lakhs है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट कितना है, पर स्टूडेंट 75। तो 3 lakhs को 75 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स 4,000. यस 4000, वेरी गुड। सिमिलरली 2015 में देखो 375, 3,75,000 टोटल सेल्स मिला, टोटल फीस डिवाइडेड बाय 75 पर स्टूडेंट। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास 2015 में? 12,000. वेरी गुड। तो आप 2016 में तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो नो प्रॉब्लम। तो आप 75 पर स्टूडेंट का फीस तो सेम रखोगे ना, ठीक है। तो देखो अभी फीस ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपने कर दिया 4000 इंटू 75, आपको मिल गया 3 lakhs। 5000 इंटू 75 मिल गया 3,75,000। अब 2016 में ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना अमाउंट दिया हुआ है, पर इतना तो पता है ना, पर स्टूडेंट का फीस तो 70, कम थोड़ी करोगे आप। और बढ़ाने के लिए तो वो बोल नहीं रहा है, कम तो हम करेंगे नहीं फीस। तो 75 तो मेंटेन रखेंगे ना, अंडरस्टूड है ये, ठीक है। इतना तो अंडरस्टूड है ना, इतना तो हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। अब ये सेल्स मिल गया आपको, इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे। अब आपको डिटरमाइन करना है इसमें से कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है, बता सकते हो कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? यस, इसमें से आपकी कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? रेंट वेरिएबल होता है। क्वेश्चन नहीं दिखा. हाँ, क्वेश्चन है ना आपके सामने, देखो रेंट वेरिएबल होता है कि फिक्स्ड होता है? फिक्स्ड फिक्स्ड, होता है। वेरी गुड, फिक्स होता है। फिक्स्ड, वेरी गुड। तो आपका रेंट अभी तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। एग्जामिनेशन फीस वेरिएबल, प्रिंटिंग वेरिएबल, ऑनोरियम, ऑनोरियम तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा ना जितना आपने बोला है, तो फिक्स्ड होता है वो। इन्विजिलेटर फीस देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 100 पर डे फॉर 2 days, अगर 3 days होगा तो और बढ़ जाएगा, 4 days होगा तो और बढ़ जाएगा, मतलब ये वेरिएबल है। इन्विजिलेटर फीस वेरिएबल, ठीक है। अदर जनरल एक्सपेंसेस फिक्स्ड होता है, जनरल एक्सपेंसेस हमेशा याद रखो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कौन कौन सा, इन शॉर्ट ये देखो, एग्जामिनर फीस, प्रिंटिंग फीस, इन्विजिलेटर फीस, 3 एक्सपेंसेस आपके वेरिएबल है। तीनों को आपने सेम कॉपी पेस्ट कर लिया, जैसे जो लिखा हुआ है 1,20,000 एग्जामिनर फीस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 80,000 एंड इन्विजिलेटर फी 16,000। देखो कॉपी कर लिया आपने दोनों में, 14, 15, 16 का तो दिया हुआ ही नहीं है ना। अब क्या करोगे आप, सॉरी फीस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन। देखो कंट्रीब्यूशन 84,000 मिला,
अब आप 4000 यूनिट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मिलेगा। तो पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन का कितना है 21, यहाँ पे भी 21, तो यहाँ पे भी 21, मतलब एटलीस्ट आपको 2016 में सेलिंग प्राइस पर यूनिट 75, वेरिएबल कॉस्ट 54, 54, 54 सेम है क्योंकि उसने चेंज करने के लिए बोला ही नहीं है, और कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा 21, 21, 21। ओके, अब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, कुछ नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, रेंट है, रेंट के बाद ऑनोरियम है और जनरल एक्सपेंसेस। तो रेंट है 12,000, ऑनोरियम है आपका 10,000 एंड जनरल एक्सपेंसेस 12,000। सेम आपने कॉपी कर लिया तीनों में, नहीं सॉरी दोनों में, 14 एंड 15 में, ठीक है। लेकिन 16 में क्या बोल रहा है, रेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस 3,000 एंड 8,000 से बढ़ गए। तो अगर आपका ध्यान है तो रेंट 12,000 थी, 3,000 ऐड हो गई तो 15,000। ऑनोरियम सेम, क्योंकि कुछ नहीं बोला ऑनोरियम के लिए, 10,000 10,000 10,000। लेकिन जनरल एक्सपेंसेस को बोल रहा है वो 8,000 से बढ़ गए, मतलब 12,000 थे तो अभी 20,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट सारी मिल गई, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे ही प्रॉफिट मिल गया तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट शीट बन गया आपका। सो पहले आप मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाइए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट्स की ब्रेक लेकर। पहले आप इस क्वेश्चन को देखकर स्नैपशॉट ले लो क्योंकि लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। हम 5 मिनट्स की ब्रेक लेंगे और फॉर्मूलाज फिर कैलकुलेट करेंगे।